Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone. And once again, I am Aminul Islam with the chapter relation. In the last video, I have already discussed the types of relations and the void relation and the universal relation. I have already discussed the domain of a relation and the range of a relation. Once again, I am reminding you that if R is a relation from a set A to B, from a set A to B, R is a relation from the set A to B, then the domain of R is written as domain of R is written as domain of R is equals to A such that the ordered pair AB belongs to R. ए बी ऐसा ऑर्डर पेयर जितना सारे आर के अंदर है उसका फर्स्ट एलिमेंट को लेकर जो सेट मिलता है वही होता है डोमेन ऑफ आर. अब रेंज क्या चीज होता है? एंड द रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर. रिलेशन आर के अंदर जितने सारे ऑर्डर पेयर है ए बी, उसका सेकेंड एलिमेंट को अगर हम एक सेट के अंदर ले लेते हैं तो वही हो जाता है रेंज ऑफ आर एंड इट इज रिटन एज रेंज आर. दिस वन ओके लेते हैं. दैट मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. तब हम इसको ए टू ए नहीं बोल के सिर्फ रिलेशन ऑन ए बोलते हैं, राइट? सो रिलेशन ऑन ए मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ A cross A. Okay. Now let's discuss the void relation. You know very well that the relation is nothing but the subset of A cross B. Suppose A and B are two non-empty sets. Two non-empty sets. Then a relation R from A to B is said to be empty relation if no element of A is related to any element of B. यहाँ पर A का कोई भी एलिमेंट B का कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं रहेगा. तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. द वॉइड रिलेशन विल बी मच मोर क्लियर. ओके. A is equals to 1 2 3 and B equals to 2 5. Now let's define a relation R from A to B, and R is given by R is equals to AB such that A plus B is greater or equals to 15, where A belongs to capital A and B belongs to capital B. Now see here, addition of A and B will be greater or equals to 15. But is there any elements in A and B such that A plus B will be greater or equals to 15? यहाँ पर A और B के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हम लोग ऐड करने के बाद 15 मिल सकता है. ये कभी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि A क्रॉस B यहाँ पर जो मिलेगा, A क्रॉस B, the elements will be 1 2 1 5 2 2 2 5 3 2 3 5. These are the all elements of A cross B. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका दोनों एलिमेंट को ऐड करने के बाद हम लोगों को एटलीस्ट 15 मिलेगा. है यहाँ पर कोई? A है मैक्सिमम 3 और 5, लेकिन 3 और 5 को ऐड करने से हम लोगों को 8 मिलता है, नॉट 15, राइट? सो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी नल
set. Okay, so this will be exactly null set. So this is equals to, and this relation is called empty relation or void relation. Okay, next, what is universal relation? So a relation R on a non-empty set, a relation R on A where A is not equals to null set, that means A is non-empty set. So a relation R on A is said to be universal relation if each and every element is related to itself and other elements. एक रिलेशन आर ऑन ए, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन तभी बोलेंगे जब ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ भी रिलेटेड होगा और दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए इज द सेट, सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, right? And a relation R on A defined by R is equals to AB such that A plus B greater equals to 0, right? यहाँ पर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे जिसका समेशन ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, राइट? अब ए क्रॉस ए अगर हम लोग लेते हैं तो वहां पर जितने सारे ऑर्डर्स पेयर रहेगा वो सारे ऑर्डर्स पेयर के लिए ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। नाउ लेट्स सी इट, इफ वी टेक ए क्रॉस ए, दिस इक्वल्स टू, सो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 and 3 1 3 2 3 3, right? So if we see, then we can observe here that 1 1 1 plus 1 how much? 2 greater equals to 0, 1 plus 2 3 greater equals to 0, 1 plus 3 4 greater equals to 0. In this way all the elements will remain in the set R. That means these all elements belongs to the relation R, and that's why this relation R is called the universal relation, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस ए, सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर जो वॉइड रिलेशन मिला था और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों रिलेशन को एक साथ ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। So these two relations are known as trivial relation. These two, this one and this one, ये दोनों एक साथ trivial relation, ये दोनों रिलेशन को एक साथ ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों केसेस ट्रिवियल है। In case of void relation there is no element, and in case of universal relation सारे एलिमेंट्स यहाँ पर रहता है, इसीलिए इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट? सो द डेफिनेशन, लेट A be a non-empty set, then the identity relation, on A is denoted by IA and defined by
and defined by IA is equals to AA such that for all A belongs to A, right? So if A is a non-empty set, then the identity relation on A is denoted by IA. Mind it, denoted by IA. IA means identity relation on A, and defined by IA is equals to AA such that for all A belongs to A. जितने सारे एलिमेंट्स है ए के अंदर, उस सारे एलिमेंट्स को खुद के साथ रिलेट करके ऑर्डर पेयर को हम जब लेते हैं तब उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. So, example of identity relation. Suppose a set is given here. A is equals to A, B, 1. Right? Then the identity relation on A, IA is equals to. So, what is the definition? The identity relation will contain all the elements like AA. For all A belongs to capital A. Now, there are three elements A, B, C. So, the first element will be A, second one will be B, and third one will be 1, 1. So this is the identity relation on A. मान ली यहाँ पर ये सिर्फ 3 एलिमेंट रहेगा, इससे ज्यादा और कोई एलिमेंट नहीं रहेगा. यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स रहेगा यहाँ पर भी उतना ही एलिमेंट्स रहेगा, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं. एंड द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके. Now, a relation R on A, which is a non-empty set, is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to capital A. Now see here, a relation R on A is said to be reflexive if AA belongs to R for all A belongs to A. इसका मतलब क्या है? कैपिटल A के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसका सेम ऑर्डर पेयर अगर हर ऑर्डर पेयर R के अंदर रहता है तो ही हो जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इससे पहले वाला जो था आइडेंटिटी रिलेशन, वो भी नियर अबाउट ऐसा ही कुछ था. यहाँ पर 95% स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, बट आई एम क्लियरिंग योर कंफ्यूजन. सी हियर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये सारे एलिमेंट्स ए टाइप का जितने सारे एलिमेंट्स है वो तो रहेगा ही, उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स रह सकता है. लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ यही एलिमेंट रहेगा, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं. लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए टाइप का एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट्स रहेगा और उससे ज्यादा भी अगर रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होल्ड करना है कि सिर्फ देखना है ए टाइप का सारे एलिमेंट्स है, यस है, तब हो गया काम. उससे ज्यादा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में अगर उससे ज्यादा एलिमेंट्स है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट विल बी मच मोर क्लियर. See here, suppose a set A is given here, A is equals to 1, 2, A, right? This one. Now, if we take the relation R1 is equals to 1, 1, 2, 2, AA, R2 is equals to 1, 1, 2, 2, A, and 1A. R3 is equals to 1, 1, 2, 2. Now see here, there are three relations. Okay, one is R1 equals to this one. Another one is R2 equals to this one, and R3 is equals to this one. Now we will examine which one will be the reflexive, which one will not be reflexive. Now see here, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है 1, 1, 2, 2, AA, सो AA टाइप का जितने सारे एलिमेंट्स था वो खुद के साथ देखो यहाँ पर हर एक एलिमेंट रिलेटेड है.
So first one will be reflexive, this one. Next one, यहाँ पर भी देखो ए टाइप का जितने सारे एलिमेंट्स, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, ए इज रिलेटेड टू ए, और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं. सो ए टाइप का हर एक एलिमेंट्स है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा एक एलिमेंट है. सो मुझे इसको देखने का कोई जरूरत नहीं, मेरा सिर्फ रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 3 एलिमेंट्स चाहिए, और वो 3 एलिमेंट्स है यहाँ पर. और जब है तो ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन. लेकिन थर्ड वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पर देखो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन ए नहीं है. ये जो एलिमेंट है ए, तो यहाँ पर ए भी एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ए वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अब देखो R1 इज ऑल्सो आइडेंटिटी रिलेशन. R1 जो है वो ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन भी है, इसीलिए बोला जाता है कि हर आइडेंटिटी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है. यहां पर देखो दिस वन, सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन. फर्स्ट वन आइडेंटिटी रिलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट? सो write a note here. This is a very important point, that identity relation implies reflexive relation, but reflexive relation does not imply identity relation. That means identity relation is always reflexive, but the converse is not true. आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? A relation R on a set A where A is non-empty. When you are writing here not equals to 5, that means read it as non-empty set. A is non-empty set. Okay, so a relation R on a set A, non-empty set A, is called symmetric if AB belongs to R, if AB belongs to R, implies BA belongs to R for all AB belongs to R. A relation R is called reflexive. इसको कब रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा? R के अंदर जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, उसको अगर हम रोटेट करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो सारे एलिमेंट्स को भी R के अंदर रहना चाहिए. इफ सो देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मतलब हर एक एलिमेंट ए बी के लिए बी ए भी रहना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ए इज द सेट ए इज इक्वल्स टू 7 9 8, right? Okay, now R1 is equals to 7 9 8 7 and 7 8. R2 equals to 7 7 9 9 8 9 9 8. This one. Now see here, R1 यहाँ पर जो रिलेशन है वहां पर 7 9 8 7 एंड 7 8 3 एलिमेंट्स है. अब देखो ए वाला एलिमेंट के लिए फॉर दिस वन देयर इज एलिमेंट 7 9. इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो कितना होता है 9 7, बट देयर इज
no element 9 7 in R1. That's why this is not symmetric relation. अब R2 को चेक करते हैं क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं. सो यहाँ पर देखो 7 7 है. सो 7 7 को अगर रोटेट करते हैं तो फिर से वही एलिमेंट मिलता है 7 7. सो दिस इज करेक्ट वन. फॉर दिस वन 9 9 उसको रोटेट करते हैं तो 9 9 ही मिलता है. 8 9 इसको अगर रोटेट करते हैं तो 9 8 मिलता है. वो भी यहाँ पर एलिमेंट्स है. सो फॉर ऑल द एलिमेंट्स द रिवर्स वन और द कन्वर्स वन exist here, right? And that's why this R2 is a symmetric relation. Next, note. You know very well that the inverse of a relation is written as R inverse. And R inverse से कौन सा एलिमेंट रहता है? R inverse is equals to BA such that AB belongs to R. AB में जो सारे एलिमेंट्स रहता है उसको सिर्फ घुमा के यहाँ पर अगर AB है तो उसको अगर BA करके सारे एलिमेंट्स को हम लोग ले लेते हैं तो वही हो जाता है R इनवर्स. दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन ऑफ R. नाउ यहाँ पर एक नोट लिखो कि सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में. अगर ए रिलेशन R इज सिमेट्रिक देन द R इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक. That means R is symmetric implies that R inverse is also symmetric. अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा. अगर तुमको दिया हुआ है R इनवर्स इज सिमेट्रिक देन R विल बी सिमेट्रिक. अगर R इनवर्स सिमेट्रिक है तो R भी सिमेट्रिक होगा. ओके. So write it down. One is sixth one anti-symmetric relation. So इससे पहले वाला था symmetric relation, अब anti-symmetric. So anti-symmetric, anti का मतलब क्या होता है? Opposite. So a relation R is called a relation R on a set A which is non-empty set is called anti-symmetric. Symmetric if AB belongs to R and BA belongs to R implies that A is equals to B. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम तभी बोलते हैं जब एक एलिमेंट ए बी आर के अंदर है, दूसरा एक एलिमेंट बी ए, इसको अगर ऑल्टरनेट किया तो बी ए होता है. वो एलिमेंट भी अगर आर के अंदर है तो डेफिनेटली ये दोनों एलिमेंट्स सेम होगा. ए इक्वल्स टू बी होना ही पड़ेगा. अगर ऐसा हुआ तभी उसको हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. अगर ऐसा नहीं हुआ, देखा गया कि एक एलिमेंट 1 2 है और 2 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2. दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी एंटी सिमेट्रिक. चलो एक एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर होगा. सपोज, सो यू कैन टेक द डेफिनेशन. ओके, नाउ एग्जांपल. सपोज A is equals to A, B, C, right? A relation R1 is equals to, sorry, A, B, B, and C, C. This one. R2 is equals to A, B, and now let's take an example. So example, suppose A is a set. A is equals to 1 2 3, right? And R1 is equals to 1 1 2 2 and 3 3, right? R2 is another one. R2 is equals to 1 1 1 2
2 1 3 3, right? This one. And R3 is equals to 1 1 1 1 2 2. Suppose this one. Okay. Now see here. यहाँ पर देखो 1 1 एलिमेंट है, 2 2 है, 3 3 है. एंटी सिमेट्री का डेफिनेशन में क्या बोला गया था? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल्स टू बी. ए इक्वल्स टू बी होना ही पड़ता है. अब देखो यहाँ पर 1 1 है, सो 1 1 को अगर हम लोग घुमाए तो क्या होता है? 1 1 ही होता है और 1 इक्वल्स टू 1 ही होता है. सो दिस वन इज करेक्ट वन. फॉर दिस वन 2 2, इसको अगर हम घुमाते हैं, if we rotate this one, if we alternate these two elements, then this will be 2 2, and definitely 2 is equals to 2. This is 3 3, so if we alternate the elements, this will be 3 3, and 3 is equals to 3. And for this one, this will be anti-symmetric. लेकिन R2 वाला जो रिलेशन है, यहाँ पर देखो 1 1 है, 1 2 है. सो 1 2 को अगर हम चेंज करें तो क्या होता है? 2 1 होता है, वो भी है. सो दीज आर द टू एलिमेंट्स, ए बी एंड बी ए टाइप का 2 एलिमेंट्स है. अब एंटी सिमेट्रिक होने के लिए कितना होना पड़ता है? ये दोनों एलिमेंट को इक्वल होना पड़ता है, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2. दैट्स व्हाई R2 इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर R2 को एंटी सिमेट्रिक होने के लिए 1 इक्वल्स टू 2 होना पड़ता है, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. अब R3 यहाँ पर देखो, दिस इज एंटी सिमेट्रिक. व्हाई? बिकॉज 1 1, इसको अगर हम ऑल्टरनेट करें तो कितना होता है? 1 1 होता है, और 1 इक्वल्स टू 1, ये वाला भी वही है. सो फॉर दिस लॉजिक दिस इज एंटी सिमेट्रिक, बट दिस वन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. ओके. अगर यहाँ पर एक नोट लिख लो कि अगर कोई भी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर ऐसा है, लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. अगर ऐसा हुआ, ए बी एक एलिमेंट है 3 7, मान लो कि 3 7 ए एलिमेंट आर के अंदर है, लेकिन 7 3 वो एलिमेंट नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो भी वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है. क्यों? क्योंकि जब भी 3 7 है तब 7 3 को भी रहना पड़ता है, तब जाके ये दोनों एलिमेंट को इक्वल होना पड़ता है. लेकिन अगर 3 7 है और 7 3 नहीं है तो उसको चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है. ओके. नेक्स्ट, सो ट्रांजिटिव रिलेशन. one more types of relation is there. Transitive relation. So transitive relation definition: a relation R is said to be transitive if AB belongs to R. दो एलिमेंट A और B रिलेटेड है एंड B C belongs to R, then AC belongs to R. Right? यहाँ पर A is related to B है and B and C are related. Right? A के साथ B है, यहाँ पर जो खत्म हो रहा है B के साथ वही यहाँ पर स्टार्टिंग होगा. B and C belongs to R, that means B is related to C. तब A will be related to C. अगर A कंडीशन होल्ड करता है तभी जाके उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं. नाउ लेट्स टेक एन लाइव एग्जांपल. मान लो कि तुम्हारा कोई भाई है, अंकल का बेटा, राइट? सो फिर से तुम्हारा उस भाई का, उसका भी कोई अंकल का बेटा हो सकता है, राइट? सो उसका भी वो और एक भाई है. अब तुम्हारा वो अंकल का बेटा का जो भाई है वो भी तो तुम्हारा भाई होगा,
दैट मीन्स तुमको अगर खुद को ए कंसिडर कर रहे हो और अंकल का बेटा को अगर तुम बी कंसिडर कर रहे हो और तुम्हारा उस भाई का और एक जो भाई है उसका भी अंकल का बेटा होगा, उसको अगर सी कंसिडर कर रहे हो तो तुम ए इज रिलेटेड टू बी, अगेन बी इज रिलेटेड टू सी, और तुम सी के साथ उसके भाई के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हो। कौन सा रिलेशन में? भाई के रिलेशन में, राइट? सो दिस इज ट्रांजिटिविटी। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, then directly A will be related to C. If all the elements hold this condition, then the relation will be called transitive relation. Okay, now let's take an example. Suppose example, A is equals to 1 2 3, write this one, and R1 is equals to 1 1 1 2 2 3 and 1 3. Now the question is it a transitive relation? The answer is yes. Why? Because there is element 1 1 and another element 1 2. See here, this element and this element must be same, so there should be element remaining 2 1 2, ये एलिमेंट रहना चाहिए और है यहाँ पर। नेक्स्ट चलो हम इन दोनों को चेक करते हैं। सो फॉर दिस वन 1 2 2 3 1 2 2 3, सो दीज टू एलिमेंट्स आर सेम, सो ऑन 3 ये दोनों एलिमेंट रहना चाहिए, हाँ यहाँ पर है, राइट? And for this one, for this reason, this is a transitive relation. Okay, and the next one is equivalence relation. Okay, so next one is equivalence relation. So what is the definition? So a relation R on a set A is said to be equivalent relation if R is number 1 reflexive, number 2 symmetric, and number 3 transitive, right? So if a relation is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये सारे तीनों अगर एक ही रिलेशन में है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सो इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। द रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों के अंदर अगर कोई भी वायलेट करता है, इफ द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव then that is not equivalence relation. If the relation is not symmetric then it can't be equivalent relation. अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा। ये तीनों जो है इसके अंदर कोई भी अगर एक वायलेट करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए ये तीनों को होना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ता है, सिमेट्रिक भी होना पड़ता है एंड ट्रांजिटिव भी होना पड़ता है। सो फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन दिस वन and this one and this one, these 3, right? ये सारे तीनों मिलके होता है इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नाउ let's take an example. Suppose a set A is equals to 1 2, right? Then the equivalence relation on A is given by R is equals to 1 1 1 2 2 1 2 2, right? So this is the equivalence relation. Why?
because it is reflexive. Why it is reflexive? Because 1 1 and 2 2 element is there. Why it is symmetric? Because 1 2 2 1 these elements are there, that's why it is symmetric. Transitive, यहाँ पर 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 रहना चाहिए, है यहाँ पर 1 2 2 1, सो 1 1 रहना चाहिए, यहाँ पर है, और 2 1 1 2, सो 2 2 रहना चाहिए, यहाँ पर 2 2 भी है. इसीलिए ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. सबसे इजी इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है अगर हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन को ले लेते हैं कोई भी सेट के ऊपर. इफ वी कंसीडर द यूनिवर्सल रिलेशन देन दैट विल बी द इक्विवेलेंस रिलेशन. वन मोर थिंग, if you take the identity relation, it will be equivalence relation. वो भी एक equivalence relation ही होता है. ओके, सो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ अगर आइडेंटिटी रिलेशन को लेते हैं सिर्फ वही हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन. एंड यूनिवर्सल रिलेशन, होली यूनिवर्सल रिलेशन विल बी आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन. The next one, the last one is partially ordered relation. Now, for POD, partially ordered relation. So, what is partially ordered relation? यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए यहाँ पर 3 रिलेशन को जोड़ना पड़ रहा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को. अब पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन के लिए भी 3 रिलेशंस आर नीडेड. वन इज रिफ्लेक्सिव, another one is anti-symmetric and another one is transitive. So a relation R is called on a set A is called POD, POR, partially ordered relation if R is number 1 reflexive, number 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक जरूरत हुआ था लेकिन यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक लेंगे. नंबर 2 एंटी सिमेट्रिक एंड नंबर 3 व्हिच वन? ट्रांजिटिव. So a relation R is POR, partially ordered relation if R is reflexive, antisymmetric and transitive. So partially ordered relation के लिए यहाँ पर ये तीनों रिलेशन को चाहिए. नंबर 1 this one and antisymmetric, reflexive and transitive. ये तीनों मिलके होता है POR, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन. सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों को लेके होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों को लेके होता है पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन. सो इफ you are asked to verify whether a given relation is POR or not, partially ordered relation or not, then you have to check whether the relation is reflexive, antisymmetric and transitive. If the relation is reflexive, antisymmetric and transitive, then only the relation is partially ordered relation. तुम्हारे लिए most important equivalence relation है this one. So frequently this question occurs in the final exam and you are asked the given relation is equivalence or not. You have to check this one, and to check you have to check this one you have to check reflexive, antisymmetric and transitive. Okay, so mind it, for equivalence relation you have to check reflexive, symmetric and transitive. Hope all of you have enjoyed my video. Thank you guys. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.